Welcome to all in our YouTube channel Being Engineer. In this very first lecture, we will discuss electric circuit parameters and their duality. So, welcome you all in this session. Let us see the circuit parameters. There are three circuit parameters, namely resistance, inductance and capacitance. अब इनका आपस में क्या रिलेशन होता है उसको हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए। V is equals to R into I. This is simply Ohm's law. Everybody knows this thing. How can we get this voltage? By the derivative of flux linkage. How can we get this current? By the derivative of charge. If I differentiate charge with respect to time, I will get current. If I differentiate flux linkages with respect to time, I will get voltage. So this is the relation. What is the relation between charge and voltage? This Q is equals to V into C. Q is equals to C. Psi is equals to L into I. I can write I into L is equals to psi. So this is flux linkage, inductance, current, resistance, voltage, capacitance, electric charge, and this is the relation. Now see, if I multiply V with Q, I will get Q into V, and as I know Q is equals to CV, so this is nothing but CV square. जैसे कि हम जानते हैं कैपेसिटर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, capacitor stores the energy in electrostatic field and the stored energy is half CV square. So this is twice of that. I can write twice of WE, मतलब twice of the total energy stored by capacitor in electrostatic field. Similarly, if I multiply psi and I, what I will get? Psi I. But I know that psi is nothing but L into I. I can put over here Li into I is nothing but Li square. What is the energy of the inductor? Energy of the inductor is half Li square, and it is twice of that. So shall I write this is twice of Wm, means twice of the energy stored by inductor in magnetic field. So this is the relation. If I multiply V and I can simply get V into I, which is nothing but V. This is very VIP, very important. So this is the power V into I. I can put V is equals to IR, and this is nothing but I square R. This can also be written as V square by R using Ohm's law, which is nothing but V is equals to IR. So this is the power dissipated by resistor in watts. This is the energy stored by inductor in joules. This is also the energy stored by capacitor in joules. So students, we have represented all the circuit parameters in this particular diagram with certain laws and certain relationship. Like I already told you, V is equals to IR. ये कौन सा लॉ है? Ohm's law. हम जानते हैं फ्लक्स लिंकेज को डेरिवेटिव करने से वोल्टेज मिलता है, फैराडेज लॉ से। करंट कैसे मिलता है? चार्ज को डिफरेंशिएट करने से। तो ये वो हो गया। यहाँ पे हमें क्या मिल गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मिल गई। यहाँ पे हमें क्या मिल गया? मैग्नेटिक फील्ड में इंडक्टर के द्वारा स्टोर्ड एनर्जी मिल गई। यहाँ पे हमें क्या मिल गया? पावर डिसिपेटेड बाय रेजिस्टर मिल गया। ठीक है, यूनिट्स की बात यदि करते हैं, एवरीबॉडी नोज दिस थिंग, बट जस्ट आई एम रिकॉलिंग। वोल्टेज की यूनिट वोल्ट्स है, रेजिस्टेंस ओम, करंट एंपियर, इंडक्टेंस हेनरी, फ्लक्स लिंकेज की यूनिट क्या हो जाएगी? हेनरी एंपियर, और वेबर टर्न इज आल्सो अनदर यूनिट। चार्ज यूनिट है कूलम्स, कैपेसिटेंस फैराड, this is the energy, unit is joule, this is also the energy, unit is joule, and this is nothing but the power, which and the unit is watt. One thing which is very important, resistor कहीं भी होगा पावर को डिसिपेट करेगा, और इंडक्टर और कैपेसिटर होंगे तो वो एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, डिपेंडिंग अपॉन देयर इनिशियल कंडीशंस। तो जब भी हम नेटवर्क थ्योरी में रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर की बात करेंगे तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब जैसा कि मैं बात कर रहा था आपसे कि ड्यूअलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि इससे हम सर्किट थ्योरी के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं।
आधे याद रखेंगे और ड्यूअलिटी अगर आपको बनती है तो बाकी के आधे फॉर्मूले अपने आप आपके पास आ जाएंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एज आई नो Q is equals to CV, ठीक है, दिस इज द बेसिक रिलेशन बिटवीन चार्ज, वोल्टेज एंड कैपेसिटेंस। तो आप यहां देख सकते हैं V का ड्यूअल क्या है, वोल्टेज का ड्यूअल करंट, C का ड्यूअल क्या है यहां, इंडक्टेंस, और Q का ड्यूअल क्या है यहां, फ्लक्स लिंकेज। ये पूरी ड्युअलिटी है। इसको मैं यदि यहां रख दूं तो Q की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साई, C की जगह इंडक्टेंस और वोल्टेज की जगह करंट। देखिए मुझे क्या रिलेशन मिल गया, साई इक्वल्स टू L। So this relation is exactly the dual relation of this. ठीक, not only this, what is the energy stored by inductor in magnetic field? We know that half Li square. Let us make the dual of that. इसका यदि हम dual लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 1/2 इंडक्टेंस का ड्यूअल, यहां से देख सकते हैं इंडक्टेंस का ड्यूअल क्या है, कैपेसिटेंस है, करंट का ड्यूअल क्या है, वोल्टेज। तो देखिए क्या मिलेगा, इंडक्टर की जगह कैपेसिटेंस, करंट की जगह वोल्टेज। What is this? This is the energy stored by capacitor in electrostatic field. So I can write WE. इसका मतलब एनर्जी का ड्यूअल एनर्जी है, बस उसकी फील्ड चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अलावा वोल्टेज का रिलेशन आप जानते हैं, इंडक्टर के लिए क्या होता है, LdI/dt। Which law is this? Faraday's law. I have already represented current by capital I, so I can write dI/dt like this. Let us make the dual of this. वोल्टेज का ड्यूअल क्या है, करंट, करंट का ड्यूअल क्या होगा, वोल्टेज, इंडक्टेंस का ड्यूअल क्या होगा, कैपेसिटेंस। बस इतना यहां चेंज कर दें तो V की जगह I, L की जगह C और I की जगह V। तो देखिए क्या मिल गया, I = C dV/dt। मतलब जो रिलेशन हमें इंडक्टर के लिए वोल्टेज का मिल रहा था उसमें ड्यूअलिटी लगाने से हमें रिलेशन करंट का मिल रहा है कैपेसिटर के लिए। जो रिलेशन हमें इंडक्टर की एनर्जी का पता था उसमें ड्यूअलिटी लगाने से हमें मिल रही है कैपेसिटर की एनर्जी। जो रिलेशन चार्ज का कैपेसिटर के लिए था उसमें ड्यूअलिटी लगाने से हमें मिल रहा है फ्लक्स लिंकेज इंडक्टर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सर्किट थ्योरी व्हिच इज नोन एज ड्यूअलिटी। केवीएल का ड्यूअल क्या होगा, केसीएल होगा, नोड का मैश होगा, नोडल एनालिसिस का मैश एनालिसिस होगा। तो आगे चल के हम देखेंगे कि ये रिलेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक और रिलेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप सब जानते हैं कैपेसिटर का वोल्टेज होता है 1/C इंटीग्रल I dt होता है। This is the formula for calculating the voltage of the capacitor. V = 1/C इंटीग्रल I dt। इसका यदि मैं ड्यूअल लूं तो मुझे क्या मिलेगा, V की जगह I, C की जगह L और I की जगह V। देखिए यानी जब हमारे पास इंडक्टर का वोल्टेज था ड्यूअल लेने पे कैपेसिटर की करंट मिली, और जब हमारे पास कैपेसिटर की वोल्टेज था और हमने ड्यूअल लिया तो इंडक्टर की करंट मिली। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर द ड्यूअल ऑफ ईच अदर, वोल्टेज एंड करंट आर द ड्यूअल ऑफ ईच अदर, फ्लक्स लिंकेज एंड चार्ज आर द ड्यूअल ऑफ ईच अदर। बट एनर्जी का ड्यूअल क्या है, एनर्जी है, और पावर का ड्यूअल पावर है। क्यों कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि P = VI। अगर अभी हमने पढ़ा है वोल्टेज का ड्यूअल क्या है, करंट, और करंट का ड्यूअल वोल्टेज है, तो P = VI या P = IV, अगेन आई विल गेट सेम ड्युअलिटी प्रॉपर्टी। पावर का ड्यूअल पावर है, एनर्जी का ड्यूअल एनर्जी है। और इस तरह से हम सर्किट पैरामीटर्स को समझ सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टी ड्युअलिटी को समझ सकते हैं। ये डायग्राम, ये पर्टिकुलर चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि हम इसको याद रखते हैं तो हमें ओम्स लॉ भी समझ में आ रहा है, फैराडेज लॉ भी समझ में आ रहा है, कैपेसिटर का रिलेशन भी समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी समझ में आ रही है, मैग्नेटिक एनर्जी समझ में आ रही है, पावर डिसिपेटेड बाय रेजिस्टर समझ में आ रहा है। What is not in this particular diagram? So this is very important. So in the very first class it is very important to learn about the circuit parameters and their duality property. और duality और भी बहुत ज्यादा है, like मैंने आपको बताया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका ड्यूअल केसीएल है, मैश का ड्यूअल नोड है, मैश एनालिसिस है यदि हमारे पास तो उसका ड्यूअल नोडल एनालिसिस है, सुपर मैश एनालिसिस है उसका ड्यूअल सुपर नोड एनालिसिस है। तो ये सारी चीजें भी, मतलब ड्यूअलिटी, मेरे कहने का मतलब ये है कि ड्यूअलिटी यदि हम समझते हैं तो सर्किट थ्योरी में हमारा वर्कलोड ही आधा हो जाता है। सारे रिलेशंस ड्यूअलिटी के बेस पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, सो आज की क्लास में हम
ये देखना चाहते थे इलेक्ट्रिक सर्किट पैरामीटर एंड देयर ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी। आई होप you like this video. Thank you very much.